اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ قنسرین کے اندر رومیوں کی کچھ فوج موجود تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے محاصرہ کیا تو رومیوں نے شہر کی دیوار پر آ کر تیر اندازی شروع کر دی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اندازہ تھا کہ اندر فوج اتنی زیادہ نہیں ہوگی، اگر ہوتی بھی تو خالد رضی اللہ عنہ ہمت نہ ہارتے۔ انہوں نے اپنے ایک ایلچی کو یہ پیغام دے کر قلعے کے دروازے پر بھیجا: اے رومیوں، تم اگر آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں میں ہوتے تو بھی ہمارا اللہ ہمیں تم تک یا تمہیں ہم تک پہنچا دیتا۔ ہم تمہیں موقع دیتے ہیں کہ بہت برے انجام تک پہنچنے سے پہلے قلعے کے دروازے کھول دو۔ اگر دروازے ہم نے کھولے تو پھر صلح کی شرطیں تمہاری کمر توڑ دیں گی۔ تمہارا سالار حاضر کے باہر مرا پڑا ہے اور جو فوج اپنے ساتھ لے گیا تھا اس کا کوئی ایک بھی سپاہی زندہ نہیں۔ ہم نے تمہیں بہت برے انجام سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس پیغام کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ قلعے کے دروازے کھل گئے۔ مسلمان فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے۔ جزیے کی رقم اور دیگر شرائط طے ہوئیں، جن میں حسب معمول ایک شرط یہ بھی تھی کہ قنسرین شہر اور اس کے شہریوں کی عزت اور جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور جو شہری شہر چھوڑ کر جانا چاہتا ہو وہ اپنے خاندان کے افراد اور اپنے مال اموال کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ جب خالد رضی اللہ عنہ قنسرین کو پوری طرح لے چکے تھے، اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پہنچے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا: ابو سلیمان، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، میں حاضر کے باہر رومیوں کی لاشیں دیکھ آیا ہوں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسی روز مدینہ خلیفۃ المسلمین کو پیغام بھیجا، جس میں انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کی اتنی بڑی کامیابی کی تفصیلات لکھی۔ یہ کامیابی اس لحاظ سے بہت بڑی تھی کہ سلطنت روم کے تابوت میں ایک اور کیل گاڑ دی گئی تھی۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پیغام پڑھ کر کہا تھا: اللہ نے خالد کو سپاہگری اور سالاری پیدائش کے ساتھ ہی عطا فرمائی تھی۔ ابو بکر پر اللہ کی رحمت ہو، وہ مجھ سے بہتر مردم شناس تھا۔ قنسرین سے آگے حلب ایک اور مشہور شہر تھا، جہاں رومیوں کی خاصی بڑی تعداد قلعہ بند تھی۔ رومی سالار جو وہاں کا قلعہ دار تھا اس کا نام یوقنا تھا۔ یہ بھی تجربہ کار سالار تھا جس نے بے شمار لڑائیاں لڑی تھیں اور ہر لڑائی میں فتح حاصل کی تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ حلب کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ رومی سالار یوقنا کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ رومی سالاروں نے کچھ عرصے سے یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا کہ وہ جب سنتے کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے وہ اپنے دوستوں کو اکٹھا کر کے جوشیلی تقریر کرتے اور قلعے سے باہر آ کر لڑتے تھے۔ یہ ایک دلیرانہ قدم تھا۔ وہ شاید یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ وہ مسلمانوں سے نہیں ڈرتے۔ یوقنا نے بھی یہی کیا۔ وہ حلب سے اپنے دستے نکال کر قلعے سے 6 میل دور آ گیا۔ مسلمانوں کی فوج کے ہراول میں اب بھی خالد رضی اللہ عنہ اپنے سواروں کے ساتھ تھے۔ یوقنا نے اپنے ساتھی سالار منیاس کی طرح مسلمانوں کے ہراول سے ٹکر لینے کا طریقہ اختیار کیا۔ یوقنا کو یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو قلعے سے دور ہی دور ختم کر دے گا۔ اسے بھی منیاس کی طرح توقع ہوگی کہ آمنے سامنے آ کر مسلمان رک جائیں گے اور جنگی ترتیب میں آ کر لڑیں گے۔ اب بھی خالد رضی اللہ عنہ نے ویسے ہی کیا کہ اطلاع ملتے ہی کہ آگے رومی لشکر آ رہا ہے اپنے دستے کو جنگی ترتیب میں کر لیا۔ رومیوں کو دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو روکا نہیں، انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر کے پہلوؤں سے حملہ کر دیا۔ سوار اس طرح گھوم پھر کر لڑے کہ رومی میدان میں اکٹھے ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سامنے سے بھی حملہ کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا یہ جارحانہ انداز یوقنا کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے جو سوچا تھا اس کے الٹ ہوا اور اس کے دستوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اس مارکے میں بھی رومیوں کی تعداد مسلمانوں کی نسبت زیادہ تھی۔ یوقنا کے دستے حوصلہ ہار بیٹھے۔ اس نے پسپائی اختیار کی اور قلعے میں چلا گیا۔ یہ قلعہ پہاڑی کے اوپر تھا، اس لیے اسے سر کرنا بہت مشکل تھا۔ مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یوقنا نے متعدد بار اپنے دستوں کو باہر نکال کر مسلمانوں پر حملے کروائے، لیکن جانی نقصان کے سوا اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ یوقنا کو امید تھی کہ شہنشاہ ہرقل کمک اور رسد بھیجے گا۔ اسے شاید معلوم نہ تھا کہ تمام تر شام میں مسلمان پھیل گئے ہیں اور اب اسے کہیں سے بھی کمک نہیں مل سکتی۔ اس نے دستوں کو باہر نکال کر حملوں کا سلسلہ روک دیا اور قلعے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ مسلمان کسی نہ کسی طرح قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے رہے لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ 4 مہینے محاصرے میں گزر گئے۔ قلعے کے اندر رومی ایسے پریشان اور خوفزدہ ہوئے کہ یوقنا نے ایک روز اپنا ایلچی باہر اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر تیار ہے۔ یوقنا کو امید نہیں تھی کہ خالد اس کی شرط کو تسلیم کر لیں گے۔ اس کی شرط یہ تھی کہ اسے اور اس کی فوج کو قلعے سے جانے دیا جائے۔ اس کے ایلچی نے جب واپس آ کر اسے بتایا کہ مسلمانوں نے اس کی شرط مان لی ہے تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ فاتح اس
उस फौज को बख्श दे जिसने उसके आगे हथियार डाल दिए हों। मैं जानता हूँ क्या होगा। जब निहत्ते सिपाही बाहर निकलेंगे तो मुसलमान उन्हें कत्ल कर देंगे। आखिर वो वक्त आया जब युकन्ना के दस्ते बगैर हथियारों के बाहर निकले और मुसलमानों की फौज के दरमियान से गुजर गए। युकन्ना को सबसे पहले निकलना चाहिए था, लेकिन वो आखिर में भी बाहर न निकला। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु किले में गए तो युकन्ना ने उनका इस्तकबाल किया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ रूमी सालार, तू जा सकता है। युकन्ना ने कहा, इब्ने वलीद, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूँ तो मुझे क्या शर्त पूरी करनी पड़ेगी? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इस्लाम कबूल कर ले, फिर तेरी हैसियत यही रहेगी जो अब है। युकन्ना ने कहा, बेशक यही मेरी ख्वाहिश थी। उसने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया और अगले ही मार्के में उसने साबित कर दिया कि वो इस्लाम का वफादार सालार है। अंताकिया शाम का एक बड़ा शहर था। उसकी अहमियत ये थी कि शहंशाह हरकल ने उसे अपना हेडक्वार्टर बनाया था। यहीं से वो अहकाम, कुमक और रसद वगैरह अपनी फौज को भिजवाता था। हरकल अब वहाँ नहीं था, वो शाम की सरहद से जा चुका था और गालिबन कुस्तुनतुनिया में था। लेकिन अंताकिया में रूमी फौज और हेडक्वार्टर मौजूद था। वहाँ से रूमियों को निकालना लाजमी था, जिससे शाम की फतह मुकम्मल हो जाती। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अंताकिया की तरफ पेशकदमी का हुक्म दे दिया। हस्बे मामूल खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घुड़सवार दस्ते के साथ हिरावल में जा रहे थे। अंताकिया चूंकि रूमियों का आखिरी बड़ा किला और अहम मकाम रह गया था और वो रूमी फौज का मरकज भी था, इसलिए तवक्को थी कि वहाँ यरमूक जैसा खूरेज मार्का होगा। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मुजाहिदीन को आगाह कर दिया था कि आगे क्या खतरा है। सबसे बड़ा खतरा तो ये था कि मुजाहिदीन की उस फौज को मदीना से निकले 4 साल हो चुके थे और वो मुसलसल लड़ रहे थे। जहाँ तक जिस्मों का ताल्लुक था वो खत्म हो चुके थे। अब तो ये रूह की कुव्वत थी जो उन्हें इंसानी सतह से बहुत ऊपर ले गई। उन्होंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। उन्हें आराम नहीं मिलता था। दिन तलवारों की झनकार, तीरों के जन्नाटों, बर्छियों के वार रोकने और वार करने में गुजर जाता और रातें अपने जख्मी साथियों की कर्बनाक आवाजों में गुजरती। वो बातिल की एक चट्टान को तोड़ते तो एक और चट्टान सामने आ खड़ी होती। वो आखिर गोश्त पोस्त के इंसान थे और ये गोश्त पोस्त थकन से टूट फूट गया था। दुश्मन उनकी उस जिस्मानी कैफियत से आगाह था और यही एक खतरा था जो सालार महसूस कर रहे थे। अंताकिया का दिफा बहुत मजबूत था। जासूसों की लाई हुई इत्तलाएं सालारों को परेशान कर रही थी, मगर रुकना और इंतजार करना भी खतरनाक था। रूमियों की कुमक आने से पहले अंताकिया पर कब्जा करना जरूरी था। मुजाहिदीन को कुरान की ये आयत बार बार याद दिलाई जा रही थी कि लड़ो उस वक्त तक जब तक कुफर का फितना खत्म नहीं हो जाता। हुक्मरानी सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के दीन की रह जाए। अंताकिया के रास्ते में 2-3 छोटे छोटे किले थे। उन्हें सर करते हुए मुजाहिदीन अंताकिया से 13-14 मील के फासले पर पहुंचे तो एक जासूस आया। जासूस ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, अबू सुलेमान, थोड़ा ही आगे एक दरिया है जिस पर एक मजबूत पुल है। उस पुल से उस तरफ रूमियों का एक लश्कर तैयार खड़ा है। रास्ता बदल लिया जाए या जंग की तैयारी कर ली जाए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो। अल्लाह को मंजूर हुआ तो ये लश्कर भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। तादाद कितनी होगी? उसने बताया, हमारे पूरे लश्कर से दुगनी तो जरूर होगी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, पीछे जाओ, सिपा सालार से कहो कि बहुत जल्दी लश्कर को आगे ले आएं। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु जब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से मिले तो पूरे लश्कर ने जंगी तरतीब में पेशकदमी की। रूमियों का लश्कर ज्यादा दूर नहीं था। ये मकाम जहाँ रूमी लश्कर मुसलमानों का रास्ता रोके खड़ा था, अंताकिया से 12 मील दूर था। रूमी सालार ने ये दानिशमंदी की थी कि दरिया को अपनी पुश्त पर रखा था। उसी मकाम पर बड़ा मजबूत पुल था, ये भी रूमियों के अकब में था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हस्बे मामूल तवक्कुफ न किया। आमने सामने आते ही अपने रिसाले को खास अंदाज से हमला करने का हुक्म दे दिया। इससे उनका मकसद ये था कि रूमियों की तरतीब बिखर जाए या वो सुकड़ जाएं। इस खुसूसी रिसाले के सवार ज़रब लगाओ और इधर उधर जाओ के उसूल पर हमले करते थे। जब दुश्मन की जमीयत बिखरने लगी तो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुश्मन के एक पहलू पर हमला करवा दिया। पीछे दरिया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की कोशिश ये थी कि दुश्मन को इतना पीछे धकेल दिया जाए कि दरिया उसके लिए मुसीबत बन जाए या उसे इतना आगे लाया जाए कि उसके अकब में जाने के लिए घुड़सवारों को जगह मिल जाए। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हमले इसी नौयत के थे जिससे मकसद हासिल किया जा सकता था। लेकिन रूमी लश्कर का सालार भी तजुर्बाकार और जंगी क़यादत और चालों का माहिर था। उसने अपने दस्तों को तरतीब में मुनज़्ज़म रखा और मुसलमानों पर हमले किए भी और मुसलमानों के हमले रोके भी। इस तरह जंग ज्यादा से ज्यादा खूरेज होती चली गई। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रूमी सालार को देख लिया और अपने चंद एक सवारों से कहा कि वो रूमियों के क़ल्ब में घुसने की कोशिश करें। कई एक सवार इस कोशिश में जान पर खिल गए। आखिर कुछ सवार रूमी सालार तक
तक जा पहुंचे और उसके मुहाफिजों का हिसार तोड़कर उसे हलाक करने में कामयाब हो गए। रूमियों का परचम गिरते ही उनमें अफरा तफरी मच गई और वो पसपा होने लगे। कुछ दरिया में कूद गए, बाकी पुल के जरिए दरिया के पार गए। जितनी देर में मुसलमान उन तक पहुंचे थे वो अंताकिया के किले के अंदर जा चुके थे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जाकर किले का मुहासरा कर लिया। रूमियों के लड़ने का जज्बा मैदान ही में खत्म हो गया था। किले में उन्होंने पनाह ली थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कई बार ऐलान करवाया कि किले के दरवाजे खोल दिए जाएं, वरना किसी की जान बख्शी नहीं होगी और कोई शर्त कबूल नहीं की जाएगी। रूमियों का लश्कर जो अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रह गया था, बगैर सालार के था। अंदर से एक एलची बाहर आया जिसने हथियार डाल दिए और ये शर्त पेश की कि लश्कर को आजादी से चले जाने दिया जाए। मुसलमान सालारों ने ये शर्त मान ली। रोम की तमाम तर फौज जो किले के अंदर थी किले से निकल गई और मुसलमान अंताकिया में दाखिल हो गए। ये 30 अक्टूबर 637 ईस्वी 5 शवाल 16 हिजरी का दिन था। रूमियों का आखिरी और सबसे बड़ा शहर भी मुसलमानों के हाथ आ गया। उसके बाद छोटी छोटी 2-4 जगहें रह गई थीं जहां रूमी मौजूद थे, लेकिन वो लड़ने के लिए मौजूद नहीं थे, बल्कि उन्हें भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। 637 ईस्वी के आखिरी महीने तक शाम पर मुसलमानों का कब्जा मुकम्मल हो गया और वहाँ रूमियों का अमल दखल बिल्कुल ही खत्म हो गया। कुस्तुनतुनिया में हरकल ईसाइयों के एक वफ्द के सामने अपने महल में बैठा था। ये वही शहंशाह हरकल था जिसकी आंखों में हल्की सी जुम्बिश से कई इंसानों को जल्लाद के हवाले कर दिया जाता था। यही हरकल था जिसने इब्तिदा में मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर देने का हुक्म दिया था। यही हरकल था जिसने हैरत का इजहार किया था कि अरब के उन बद्दुओं को इतनी जुर्रत क्यों कर हुई कि उन्होंने सल्तनत रोम की सरहद के अंदर कदम रखा। अब थोड़े ही अरसे के बाद वही हरकल अपनी आधी सल्तनत मुसलमानों के हवाले करके शिकस्त खुर्दगी के आलम में अपने दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया में बैठा, जैसे कभी न हारने वाला ज्वारी हार गया हो और उसके पास फूटी कोड़ी भी न रही हो। हरकल उन ईसाइयों से कह रहा था, तुम लोग मुझे किस तरह यकीन दिला सकते हो कि मुसलमानों को उन इलाकों से बाहर निकाल दोगे जो उन्होंने फतह कर लिए हैं? अगर तुम में इतनी जान होती तो मैं आज तुम्हारे सामने इस तरह न बैठा होता। ईसाइयों के वफ्द के लीडर ने कहा, शहंशाह रोम, अब ये सोचना बेकार है कि शिकस्त का जिम्मेदार कौन है। हम ये मसला लेकर आए हैं, वो एक बार फिर सुन लें। आप जिस खित्ते को मुसलमानों के हवाले कर आए हैं वो ना आपका था और ना मुसलमानों का है, वो हमारा खित्ता है। शिकस्त आपकी फौज को हुई, लेकिन एक गैर कौम के गुलाम हम बन गए। मुसलमानों ने जिजिया हमसे लिया, ये हमारी बेइज्जती है। हमारी मजबूरी ये है कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं लड़ सकते। हम लड़ेंगे, हम अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन हमें आपकी मदद की जरूरत है। अगर आप कुमक भेजने का वादा करें तो हम मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। हरकल उन ईसाइयों की जो शाम के शुमाली इलाकों के रहने वाले थे ये बातें इस तरह सुन रहा था जैसे ये लोग उससे भीख मांगने आए हैं और उसे इन लोगों के इस मसले के साथ कोई दिलचस्पी न हो। हकीकत ये थी कि हरकल चाहता यही था कि शाम के ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ ऐसी जंग के लिए तैयार करे जो बहुत ही तवील हो, ताकि मुसलमान शाम के इलाके में ही उलझे रहें और रोम की सल्तनत में मजीद आगे न बढ़ें। ये जंग शबखून किस्म की हो सकती थी। बेशतर मौरखों ने लिखा है कि हरकल ने दरपर्दा शाम के काबिल एतमाद पादरियों को उकसाया था कि वो ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करें। तारीखों में ये भी लिखा है कि ईसाई तैयार हो गए थे। ईसाइयों का ये वफ्द जो उसके पास बैठा था उससे बेखबर था कि जो तजवीज वो पेश करने आए हैं उस पर हरकल पहले ही काम कर रहा है। उस वफ्द पर वो ये जाहिर करना चाहता था कि उन्हें मदद देकर वो उन पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। हरकल ने उन्हें कहा कि वो वापस जाकर अपने पादरियों से मिले और पादरी उन्हें बताएं कि इस तजवीज पर किस तरह अमल दरामद होगा। उसने उन्हें ये भी बताया कि ईसाई जब मुसलमानों पर जगह जगह हमले शुरू करेंगे तो हरकल उन्हें कुमक की सूरत में अपनी फौज देगा। मुसलमानों ने अपने जासूस तमाम इलाके में फैला रखे थे, जिनमें ऐसे जासूस भी थे जो ईसाई बनकर ईसाइयों के साथ रहते और पादरियों के मुरीद बने हुए थे। उनमें से बाज शाम से निकलकर जुनूबी तुर्की तक चले गए थे। ये इलाका सल्तनत रोम का हिस्सा था। एक रोज एक जासूस ने शुमाली शाम के जासूसों से रिपोर्टें लेकर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को आकर बताया कि ईसाई वसी पैमाने पर जंगी तैयारियां कर रहे हैं और हरकल ने उन्हें कुमक देने का वादा किया है। उसके बाद 2 जासूस और आए जिन्होंने इसी किस्म की रिपोर्टें दी। इनसे बड़ी खौफनाक सूरत सामने आई। ईसाइयों का इज्तिमा बहुत ज्यादा था। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को एहसास था कि ईसाइयों के खिलाफ टक्कर बहुत खतरनाक होगी। इसकी वजह ये थी कि रूमी जिन इलाकों से भागे थे वो उनके नहीं थे।
वो तो भागकर अपनी सल्तनत में जा पनाह गुज़ी हुए थे। ये खित्ते दरअसल ईसाइयों के थे। मुसलमानों की इताअत कबूल करके उन्हें कोई माशी, माशरती या मजहबी पाबंदी नहीं थी, लेकिन वो मुसलमानों की गुलामी कबूल करने पर आमादा नहीं थे। लड़ाई की सूरत में अगर उन्हें शिकस्त होती तो उनके लिए कोई पनाहगाह नहीं थी, इसलिए उन्होंने जंग की तैयारियां ऐसे पैमाने पर की थी जो उनकी फतह का बायस बन सकती थी। जासूसों से पूरी रिपोर्ट ली गई कि लड़ने वाले ईसाइयों की तादाद कितनी होगी, उनके हथियार कैसे होंगे और उनकी क़यादत कैसी होगी। ख्याल किया जाता था कि क़यादत रूमी सालार करेंगे, क्योंकि ईसाइयों के पास क़यादत के लिए कोई सालार नहीं था। अगर कोई था भी तो वो मुसलमान सालारों की टक्कर का नहीं हो सकता था। फिर भी जो सूरत हाल पैदा हो गई थी वो मुसलमानों के लिए बहुत बड़े खतरे का बायस बन सकती थी। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से मशवरा लेने के लिए कहा, अबू सुलेमान, शाम में हमारी हुकूमत नौज़ायदा है, हमारे कदम अभी जमे नहीं। अगर हमने कोई खतरा मोल लिया और हालात हमारे खिलाफ हो गए तो हम पसपा होकर मदीना तक जिंदा भी नहीं पहुंच सकेंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अमीनुल उम्मत, सवाल हमारे जिंदा रहने या न रहने का नहीं, ये सोच के इस्लाम का ज़वाल शुरू हो जाएगा। तमाम फौज शाम में है। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम अमीरुल मोमिनीन को इत्तला दे दें और मदीने से कुमक भी मांग लें? हमारी तादाद रह ही क्या गई है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अमीनुल उम्मत, मदीना तक पैगाम जाते और वहां से कुमक आते बहुत वक्त लगेगा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम हर जगह से फौज एक मकाम पर इकट्ठी कर लें? उन जगहों पर हम जरूरत के मुताबिक फौज रहने देंगे। खुदा की कसम, मैं ईसाइयों को खुले मैदान में लाकर लड़वाना चाहता हूँ। ये बातें हम्स में हो रही थी, वहाँ दूसरे सालार भी थे। उन सब की राय ये थी कि हम्स के अंदर रहें और ईसाइयों को आने दें कि वो मुहासरा कर लें। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को अक्सरियत की राय के मुताबिक फैसला करना पड़ा। उन्होंने अपने उन दस्तों को भी हम्स में बुला लिया जो इर्द गिर्द के इलाकों में थे। उसके साथ ही अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक तेज रफ्तार कासिद के हाथ खलीफतुर रसूल उमर बिन अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को पैगाम भेज दिया, जिसमें उन्होंने तफसील से लिखवाया कि ईसाइयों ने हरकल की पुश्त पनाही में क्या सूरत हाल पैदा कर दी है। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये भी लिखवाया कि वो हम्स में कलाबंद होकर लड़ेंगे। 638 ईस्वी का साल शुरू हो चुका था। 1.5-2 महीने और गुजर गए थे कि एक रोज ईसाइयों का जुम्मे गफीर हम्स में आ पहुंचा और शहर का मुहासरा कर लिया। मुसलमान इसके लिए तैयार थे। उन्होंने बड़े लंबे अरसे के खुराक और तीरों वगैरह का जखीरा शहर में जमा कर लिया था। ईसाइयों ने मुसलमानों को कलाबंद देखा तो वो हैरान हुए कि खुले मैदान में लड़ने वाली फौज कलाबंद होकर लड़ने पर आ गई है। इसे ईसाइयों ने मुसलमानों की कमजोरी समझा। उन्होंने मुसलमानों को ललकारना शुरू कर दिया, अहले इस्लाम, अब तुम्हारा मुकाबला ईसाई अरबों से है, हम रूमी नहीं मुसलमानों, हिम्मत करो और बाहर आकर लड़ो। कले के दरवाजे खोल दो वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। अब हम जिजिया लेंगे। इस्लाम का सूरज डूब गया है, बाहर आओ और हमसे रहम मांगो। और ऐसे बेशुमार तंजिया नारे थे जो ईसाई लगाते रहे। मुसलमानों की तरफ से खामोशी थी। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे सालारों ने तय कर रखा था कि वो बाहर निकल कर ईसाइयों पर हमले करेंगे। हमलों की नौबत ही न आई। मुहासरे का चौथा या 5वां दिन था। ईसाइयों में हड़बौंग सी बपा हो गई। उन पर कोई मुसीबत नाजिल हो गई थी या हो रही थी। मुसलमान जो दीवार पर खड़े थे वो हैरत से देख रहे थे कि उन्हें हुआ क्या है। दूर उफक से गर्द उठने लगी थी जो फैलती ऊपर ही ऊपर उठती गई। ये किसी काफिले की उड़ाई हुई गर्द नहीं थी, ये किसी फौज की गर्द मालूम होती थी। अगर ये फौज थी तो ईसाइयों की ही हो सकती थी या ये रूमियों की फौज हो सकती थी। ईसाइयों में जो अफरा तफरी बपा हो गई थी वो ज्यादा हो गई और वो लड़ने की तरतीब में आने लगे।